Hello everybody and welcome again to this session of understanding the basic concepts of income tax. And today I'm going to talk about one very important aspect, that is agricultural income. The Section 10 of Income Tax Act deals with the incomes which are exempt, and agricultural income has been put under this section, subsection 1 of this act, and which speaks that theoretically agricultural income is exempt, but for under certain circumstances, it might well be taken into account for computing the total tax liability of the SSC. However, we will go to that point later on. Right now, I will focus upon explaining the meaning of agricultural income to you. Normally, as you can see on your screen, income from the produce resulting from agricultural activities is known as agricultural income. So this is quite logical. खेती बाड़ी करने में जो कुछ भी उपज होती है, जो कुछ भी पैदावार होती है, उसी को हम कृषि या एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं. But for income tax purposes, that is for the exemption purposes also, such income has to fulfill certain conditions. Only then it can be called or treated as agricultural income for the income tax purposes. So let's move over to those conditions and let's see what are those conditions. Number one, any rent or revenue from land which is situated in India. The very first condition, पहली शर्त है ये कि जिस एग्रीकल्चर इनकम की हम बात कर रहे हैं, जिस लैंड से वो आ रही है, वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, भारत में स्थित होना चाहिए. For that matter, if the land is situated outside India in any other nation or country, then any income from that agricultural land or whatsoever cannot be considered as agricultural income. So the land must be situated in India and it must be used for agricultural purposes. Agricultural purposes, they are defined afterwards. But one thing is here important: any rent or revenue from the land. Any rent or revenue from the land. Any rent or revenue, if the landowner, the landlord, is engaged in farming and sells the produce in the market, gets revenue. That is the revenue we are talking about here. Or alternatively, any rent. So landlord may give the farm, the land to some other person for agricultural activities and charge some rent from that tenant. So we are also talking about that rent. So landlord getting any rent or revenue from land which is situated in India and used for agricultural purposes. इंडिया में, भारत में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि जो ज़मीन के मालिक होते हैं वो अपने खेतों को खेती करने के लिए बटाई पर दे देते हैं, और बटाईदार जो है वो खेत जोतता है, फसल उगाता है, और या तो नकद में कुछ रेंट आप कह लें, नकद में कुछ वो लैंडलॉर्ड को देता है, या फिर उपज जो पैदावार हुई है उसका एक हिस्सा भी वो लैंडलॉर्ड को दे सकता है. सो एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड which is situated in India and used for agricultural purposes. दूसरा पॉइंट इसमें है any income from such land through agricultural operations. जो इनकम हो रही है वो खेती की क्रियाओं के कारण हो रही है. It is resulting from agricultural operations. एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, खेत को जोतना, खेत को बराबर करना, बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, तमाम चीजें, ये सारी चीजें एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में आती हैं. Any process by cultivator or recipient of income to make the produce fit for sale in the market. अक्सर ऐसा होता है कि फसल पैदावार जब हो जाती है उसके बाद भी उसको मार्केटेबल बनाने के लिए, सेलेबल बनाने के लिए उसको फर्दर कुछ प्रोसेस करना पड़ता है. काटने के बाद हो सकता है पॉलिश करना, हो सकता है छटाई करना, हो सकता है सुखाना हो.
तो इस तरीके के प्रोसेस भी वहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि उस प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए तैयार करने से संबंधित हो। तो इनकम चाहे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से हो रही हो, चाहे प्रोसेस से हो रही है, और द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, इस पैदावार को मार्केट में बेचने से हो रही है। तो ये सारी इनकम जो है वो, ये दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन आपने देखी थी, रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ये आपने देखा था। और दूसरा आपने देखा था एनी इनकम फ्रॉम सच लैंड थ्रू एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जो कि अभी मैंने नरेट किया, और any process by cultivator or recipient of income to make the produce fit for sale in the market और the sale of such produce, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है। एक और चीज इसमें ऐड की गई है, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी हाउस होता है तो उसकी इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट कर ली जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर फार्म हाउस है, फार्म हाउस का मतलब ऐसा बिल्डिंग, ऐसा हाउस जो कि बहुत क्लोज विसिनिटी में, बहुत नजदीक खेतों के स्थिति, खेत पर ही स्थित है, और एग्रीकल्चरल पर्पसेस में यूज होता है। वो फार्मर के या टेनेंट के रहने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सामान इत्यादि रखने के लिए भी, एक छोटे मोटे स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। मेनली ये है कि वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस में यूज हो रहा हो। तो ये फार्म हाउस भी यहाँ पर आप देख कह सकते हैं कि इसमें इसकी इनकम भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। हालांकि इस फार्म हाउस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को भी थोड़ा सा एक नजर डाल लेना उस पर अच्छा होगा। और वो कंडीशंस बहुत क्लियरली हैं कि ये फार्म हाउस जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक तो एग्रीकल्चर पर्पसेस में यूज हो रहा हो, चाहे वो कल्टीवेटर यानी खेती बाड़ी करने वाला आदमी खुद हो, चाहे जो रिसीवर ऑफ द रेंट या लैंडलॉर्ड हो, खुद अगर खेती कर रहा है, जो भी हो whosoever। लेकिन ये बिल्डिंग जो है, ये मकान जो है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज हो रहा हो, ये चीज यहाँ पर जरूरी है। तो एक तो ये चीज हो गई। और फार्म हाउस के लिए जरूरी है कि ये क्लोज विसिनिटी में एग्रीकल्चरल लैंड पर हो या उसके नजदीक आसपास कहीं हो, और एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज हो रही हो, और साथ ही द लैंड इज सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में स्थित है, और उस पर लैंड रेवेन्यू या लोकल टैक्सेस लगते हों जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कलेक्ट करते हों। ये चीज जरूरी है कि लैंड इज सिचुएटेड इन अर्बन लैंड एरिया and it is subject to assessment of land revenue or local taxes which is collected by the local authorities, government authorities. So this is must, because if the land revenue or local tax is not payable on such land, यानी ये मकान जहां पर है, जिस जमीन पर है, उस जमीन पर कोई लोकल टैक्स या लैंड रेवेन्यू नहीं लगता है, तो ये मकान जो है वो कुछ नॉन अर्बन एरिया में माना जा सकता है, और नॉन अर्बन एरिया में अगर ये होगा तो इसको ये छूट नहीं मिलेगी। और नॉन अर्बन एरिया क्या है, दिया हुआ है, द लैंड इज सिचुएटेड विद इन म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जुरिसडिक्शन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000। अब ये पॉपुलेशन पर बेस्ड है कि पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम है, और म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिसडिक्शन है वो वहां पर है, इसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, यहाँ पर है। और फॉर्म अगर इस जगह पे है तब तो ठीक है। और फॉर्म बिल्डिंग जो है वो जो एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया गया है, यहाँ तो 10,000 तक की पॉपुलेशन थी कि 10,000 से कम पॉपुलेशन होनी चाहिए, अगर ज्यादा है तो ये छूट नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से अर्बन एरिया को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, जैसे अगर पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख तक है, तो लोकल लिमिट्स के 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो एरियल डिस्टेंस वो मान लिया जाता है कि अर्बन एरिया है। अगर जमीन और उससे जुड़ा हुआ मकान इसमें पड़ रहा है तो ये फिर अर्बन एरिया में मान लिया जाएगा और इसको ये छूट नहीं मिल पाएगी। इसी तरीके से अगर उस जगह की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, तो एरियल डिस्टेंस लोकल लिमिट से 6 का, लोकल लिमिट ये जमीन इसके भीतर नहीं होनी चाहिए, जमीन और मकान। और अगर यही पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा है तो ये डिस्टेंस बढ़कर
8 किलोमीटर हो जाता है। तो पॉपुलेशन के बेस पे एक लोकल अथॉरिटीज जो है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, स्थानीय जो प्रशासन होता है, वो उससे एक सर्टेन लिमिट बना दी गई है, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और यहाँ के भीतर जमीन अगर ये लैंड रेवेन्यू और या लोकल टैक्स नहीं लग रहा है तब ये चीज लागू होती है। तो इन लिमिट्स के भीतर अगर जमीन स्थित है या लैंड इज सिचुएटेड विद इन दीज लिमिट्स, then this exemption would not be granted. So the income from फार्म हाउस, ये फार्म हाउस से होने वाली इनकम ये भी यहाँ पर आ गई। तो देखिए इनकम जो है वो रेंट और रेवेन्यू के फॉर्म में हो सकती है, जो या प्रोड्यूस को बेचने के फॉर्म में हो सकती है, या ये फार्म हाउस की इनकम भी कंसीडर की जा सकती है। ये सब यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। और बहुत नक्शल में अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो ये अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिजल्ट जो इस एक्सप्लेनेशन का आ रहा है कि इफ द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर जमीन या भूमि जो है वो भारत में स्थित है, बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कल्टिवेटिंग फॉर क्रॉप्स, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कह सकते हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज जो है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की, कि जमीन तैयार करना, उसकी जोतना और पूरा उसको समतल करना या क्यारियां बनाना या जो कुछ भी है वो सारा तैयार करना, टिलिंग, वाटरिंग द लैंड, पानी देना, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोना, प्लांटिंग, अदर एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय द लैंडलॉर्ड ऑन सच लैंड। जमीन के मालिक ये सारे बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहा है उस जमीन पर जो कि जमीन भारत में है। द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर बीइंग कैरीड आउट बाय द लैंडलॉर्ड ऑन दिस लैंड एंड द रिजल्टिंग प्रोड्यूस इज सोल्ड विद और विदाउट प्रोसेसिंग बाय द लैंडलॉर्ड। जो कुछ भी फसल पैदा हुई वो लैंडलॉर्ड ने यहाँ पर भेज दिया, चाहे प्रोसेस करने के पहले बेचा हो, चाहे प्रोसेस करने के बाद बेचा हो। सच इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम फॉर द लैंडलॉर्ड। ये इनकम जो जमीन का मालिक है, भूस्वामी है, उसके लिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अल्टरनेटिवली जो सेकंड ऑप्शन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अक्सर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो अपनी जमीन को किराए पर दे देते हैं दूसरों को जोतने के लिए, बटाई पर देना जिसे आप कहते हैं। सो इफ द लैंडलॉर्ड ग्रांट्स टू अ टेनेंट द राइट टू यूज द लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ये काम किया उसने, लैंडलॉर्ड ने अपनी जमीन जो है, अपना खेत जो है वो किसी को किराए पर दे दिया, बटाई पर दे दिया, एंड द टेनेंट, दिस टेनेंट कैरीज आउट द अबव मेंशन्ड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। और बजाय लैंडलॉर्ड के वो जो किराएदार है, जो बटाईदार है, वो ये सारी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहा है, फसल उगा रहा है और उस फसल को बाजार में बेच रहा है, चाहे प्रोसेस करने के बाद, चाहे विदाउट प्रोसेसिंग, बिना प्रोसेस किए हुए। तो इस टेनेंट की इनकम भी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। Obviously, in such case, the landlord will also get his share, and the share can be in form of rent or revenue, in form of cash or produce, and the income of the landlord will also be treated as agricultural income. तो इस पहले केस में आपने देखा, जस्ट प्रीवियस जो केस था उसमें ये सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दे वर बीइंग कैरीड आउट बाय द लैंडलॉर्ड एंड द इनकम फॉर द लैंडलॉर्ड वाज being treated as agricultural income. In the second situation, all the basic agricultural activities they are being carried out by the tenant, and the landlord is getting his share in form of either cash or produce. But the income of the landlord is also treated as agricultural income, as well as the income of the tenant is also treated as agricultural income. So it must be clear by now that only the landlord or the above mentioned tenant's income shall be treated as agricultural income. यानी खाली ये जमीन का मालिक है या फिर जो हमने जिस बटाईदार या किराएदार की बात की है वही यहाँ पर उसकी इनकम को ही यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम कहा जा सकता है। इसका जो एक दूसरा वो नोशन, दूसरा एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो दिया हुआ है, इफ समवन परचेजेस स्टैंडिंग क्रॉप ऑन द लैंड एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग सेल्स इट इनटू द इन द मार्केट, such income will not be treated as agricultural income in the hand of such purchaser, as basic cultural agricultural operations are not carried out by him. लैंडलॉर्ड ने या टेनेंट ने खेत बोया, फसल उग के तैयार हो गई। अब इस खड़ी फसल को कोई और दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मिस्टर रवि जो है लैंडलॉर्ड है, वो खुद खेती कर रहे हैं और उन्होंने सारी बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए,
फसल उगाई और जब खेतों में फसल खड़ी थी तब उन्होंने मिस्टर विनय को ये पूरी खड़ी फसल बेच दी। मिस्टर विनय ने इस फसल को कटवाया और बाजार में बेचा। मिस्टर रवि ने जो अपनी खड़ी फसल बेची है अपने खेत की, मिस्टर रवि के लिए तो ये इनकम यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेकिन मिस्टर विनय जिन्होंने यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी हुई फसल को खरीदा है और उसको कटवा के प्रोसेस करवा के बाजार में बेचा है, उनके लिए ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मिस्टर विनय ने जो बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं, खेत तैयार करना, बोना, फसल की देखभाल करना, पानी देना, खाद देना, ये सारे बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस दे वर नॉट कैरीड आउट बाय मिस्टर विनय। सो मिस्टर विनय के लिए ये इनकम जो है एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, बट मिस्टर रवि के लिए ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी। Similarly, income from the sale of plants, grass of spontaneous self-growth on a land, it does not involve any cultivating skill, is not treated as agricultural income। तो ये बात भी वहां पर लागू होती है कि जमीन पर कभी कभी अपने आप कुछ चीजें उगाती हैं, झाड़ियों के रूप में भी हो सकती है, पेड़ों के रूप में भी हो सकती है, बांस हो सकते हैं, बैम्बू ये हो सकते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स या ग्रास घास वगैरह कुछ भी हो जो अपने आप उगाई है, जिसके लिए कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की नहीं गई, अपने आप उगाई है, तो इसको अगर कटवा के बेच दिया गया तो ये होने वाली ये जो इनकम हो रही है ये भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इन चीजों को उगाने के लिए कोई बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं किए गए, इसलिए इनको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जा सकता। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो रही होंगी। बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी इनकम चाहे वो खुद खेती कर रहा हो तो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, या उसने अपना खेत किसी और को खेती करने के लिए किराए पर दे दिया है तो किराए से होने वाली उसकी इनकम लैंडलॉर्ड की जो है वो भी उसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगी, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड्स में हो। और जो व्यक्ति खेती करने के लिए उस खेत को किराए पर ले रहा है उसकी इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है, होगी, लेकिन और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। जो बेसिक एग्रीकल्चर या तो लैंडलॉर्ड के लिए होगी या जो कोई उस पर बेसिक एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करेगा उस व्यक्ति के लिए ये एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट यहाँ पर और आ जाता है और वो कंसेप्ट है पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम का। और पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम जो है ये थोड़े जो बड़े पैमाने पर काम करने वाले यूनिट्स हैं उनके कंटेक्स्ट में लागू होती है कि जो कि प्रोडक्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं और इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो अपने खेतों पर खुद उगाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जैसे मैन्युफैक्चर एंड सेल्स द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ रॉ मटेरियल्स ग्रोन ऑन ओन लैंड ऑन फार्म्स। एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कोई शुगर फैक्ट्री है, वो चीनी बनाने के लिए जो गन्ना है वो अपने खेतों में उगाती है और इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती है चीनी बनाने के लिए। ठीक इसी तरीके से चाय कंपनियां या कॉफी कंपनियां भी हो सकती हैं या रबर इंडस्ट्रीज में भी ये चीज देखने में आती है कि ये अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो खुद ही अपने प्रोड्यूस करते हैं, अपने खेतों में उगाते हैं। तो इस संबंध में ये जो इनकम होती है ऐसी शुगर फैक्ट्री की या टी कंपनीज आप कह लें या कॉफी कंपनीज कह लें या और यूनिट्स जो हैं इस तरीके की रबर इंडस्ट्रीज में हैं वो होती हैं, तो इनकी जो है फाइनल इनकम होती है वो मिक्स्ड होती है। बेस तो वो फिनिश प्रोडक्ट है, उससे होने वाली इनकम जो है फाइनल होती है वो मिक्स इनकम होती है, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर इनकम का भी एलिमेंट होता है और एक फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसलिए बिजनेस इनकम का भी एलिमेंट होता है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा-सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली तो किया ये जाता है कि जो रॉ मटेरियल के तौर पे उन्होंने यूज़ किया है, उसका एक जो एवरेज आप मार्केट वैल्यू के तौर पे ले सकते हैं, जो मार्केट प्राइस जो होती है रॉ मटेरियल की, उसको एक्सपेंसेस के तौर तौर पे एक तरीके से घटा दिया जाता है। जो रॉ मटेरियल के रूप में जितना उन्होंने जो अपनी प्रोड्यूस खुद उगाई हुई अपनी जो प्रोड्यूस अपने उपज का इस्तेमाल किया है, उसकी मार्केट प्राइस को उसकी इस कंपनी की टोटल इनकम जो फाइनल इनकम आई है उसमें से घटा दिया जाता है। तो ये एक चीज होती है जो कि अक्सर शुगर कंपनीज में ही ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है कि जो भी गन्ना उन्होंने उगाया है और अपने मिल्स में उन्होंने चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो
जितना भी ये इस्तेमाल किया है उसकी जो नॉर्मली प्रीवियस ईयर में जो उसकी एवरेज वैल्यू रही है उसको यहाँ पर उनकी इनकम में से घटा दिया जाता है। लेकिन अब ये घटाने के बाद फिर जो उनकी एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस हैं उनको अलग से फिर नहीं घटाया जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो कुछ चीज़ों में तो ये संभव होती है, कुछ चीज़ों में कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स में इट माइट नॉट बी पॉसिबल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं in certain cases income from sale of sugar, tea or coffee is composite income, partially agricultural or partially non-agricultural income or business income. And often it becomes very difficult to make the difference between the two, to split such income into agricultural and business income. So just to sort out this problem, certain provisions under the Act have been provided. And according to these provisions, a certain percentage of the total income of the manufacturing unit shall be taken as agricultural income, and the rest percentage would be taken as the non-agricultural or business income. And this is quite clear. You can understand it with the help of this chart on your screen. This chart clearly in the very first column, the manufacturing units, they are defined. Second column, the income of these units is split to agricultural income, and third column, non-agricultural income. Percentages are given in the second and third column. For example, the units which are growing and manufacturing tea, sellers which are growing and manufacturing tea in India. Obviously, in India, land must be situated in India, if you remember. So in such case, the 60% of the total income of such units, such seller would be taken as agricultural income, and 40% will be taken as business income. In case of centrifuge latex or Senex manufactured by the seller, obviously with the rubber which is grown by them in India. अगर कोई ऐसा लेटेक्स का या सेनेक्स का निर्माता है जो कि खुद ही रबर उगा के प्लांटेशन करके रबर ट्रीज का इंडिया में और उसको यूज कर रहा है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसकी टोटल इनकम में से 65% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल और बिजनेस इनकम माना जाएगा। कॉफी इंडस्ट्रीज को भी यहाँ रखा गया है कि अगर सेलर जो है मैन्युफैक्चरर जो है इंडिया में कॉफी प्लांटेशन ग्रो कर रहा है और उसको प्रोसेस करके क्योर करके कॉफी बना के बेच रहा है, तो उसकी 75% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 25% जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इसी में फर्दर प्रोसेसिंग में और भी आ जाती है भी कॉफी खुद प्लांटेशन उस कॉफी का सीड्स होते हैं उनके, उसके लिए प्लांटेशन वगैरह खुद करता है, क्योरिंग करता है, उसकी रोस्ट करता है, उसमें कुछ उसमें टेस्ट के लिए और फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए उसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाता है, जैसे चिकोरी वगैरह हो सकती है। तो अगर सेलर ये सारे काम करके बेच रहा है यानी प्रोसेसिंग का यहाँ पर पोर्शन बढ़ गया, तो ऐसे सेलर की इनकम का सिर्फ 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और रेस्ट 40% जो है वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। एंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनी बाकी जो प्रोडक्ट्स है टी, कॉफी और रबर तो यहाँ ले लिए गए, लेकिन और कोई प्रोडक्ट है विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द सेल्फ ग्रोन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। कोई भी सेलर इन इंडिया में कोई भी सेलर जो है वो इंडिया में अपना कुछ उगा रहा है और उसको उगा के रॉ मटेरियल के तौर पे फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल इनकम क्या लिया जाएगा, आप कॉलम में देख सकते हैं, ये लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जैसा कि मैंने शुगर केन वाले एग्जांपल में आपको समझाया था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि उसने खुद उगाई है और रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल की है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को एग्रीकल्चरल इनकम मान लिया जाएगा और उसका जो टोटल फाइनल प्रॉफिट हो रहा है उसमें से ये फेयर मार्केट वैल्यू जो अभी ली गई है एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे ये घटा दी जाएगी और जो बचेगा वही बिजनेस इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। Now one thing should be kept clearly in mind that this concept of partly agricultural income applies to above mentioned specific situations। बहुत clear cut defined situations है
कि यहाँ पर खुद ही जो है रॉ मटेरियल जो है वो उगाया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिनिश प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, इफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस डायरेक्टली सोल्ड बाय द कल्टीवेटर इन द मार्केट, इट वुड बी अ केस ऑफ 100% एग्रीकल्चरल इनकम फॉर द कल्टीवेटर। जैसे कि कोई मिस्टर रवि का ही एग्जांपल हमने लिया था, उन्होंने अपने खेतों में गन्ना उगाया और गन्ना उगा के पूरा जो है शुगर मिल को उन्होंने गन्ना बेच दिया। तो मिस्टर रवि के लिए तो ये इनकम जो है 100% एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेकिन इस सिचुएशन में अदर पर्सन, यानी कि मिल जिसने गन्ना खरीदा और उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया, उनके लिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम क्लेम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उनको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वो बेसिक एक्टिविटीज कैरीड आउट नहीं की हैं, बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म नहीं किए हैं। So it should be clear in this situation that the person who purchases this agricultural produce for using it as raw material for manufacturing any product, it will not be will not be entitled to claim the benefit of exemption regarding agricultural income. In this case, जो केस मैंने अभी बताया कि मिस्टर रवि ने शुगर मिल को अपना गन्ना बेचा, तो मिस्टर रवि के लिए तो एग्रीकल्चरल इनकम हुई, लेकिन शुगर मिल जिसने गन्ना पूरा खरीदा और उससे शुगर बना के बेची, शुगर क्यूब बना के बेचे, कुछ ही बना के बेचा, तो इस शुगर मिल को जो है इस एग्रीकल्चर इनकम का कोई एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम एक लास्ट एस्पेक्ट पर, जो कि हालांकि अभी बहुत रेलिवेंट नहीं है। जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तभी आपके लिए रेलेवेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका एक रेफरेंस यहाँ पर आ जाना जरूरी है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, and theoretically it is exempt. However, it will be taken into account for computing tax liability if. अब देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम को तो टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा गया है, लेकिन जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं उनमें यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाएगा टैक्स कैलकुलेशन में। इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसको फिर भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? अब आप देखें कि टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड्स द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर दैट असेसमेंट ईयर। हर असेसमेंट ईयर के लिए एग्जेम्पशन लिमिट होती है। आप जिस असेसमेंट ईयर में है वहां पर लिमिट 2,50,000 ऑर्डिनरली है, एक नॉर्मल एसएससी के लिए। तो अगर टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड्स दिस एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि एसएससी की नॉन एग्रीकल्चर के अलावा जो बाकी आपने अगर याद करें, आई विल टेक यू बैक टू द लास्ट सेशन, वहां इनकम के 5 हेड्स देखे थे: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब वो है, और उन पांचों को जोड़ के आप टोटल इनकम निकालते थे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते थे, और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद सेक्शन 80 का डिडक्शन देके आप टोटल इनकम निकालते हैं। सो दैट टोटल इनकम दैट डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर इनकम. Agricultural income is not in the added to gross total income. So the total non-agricultural income on the SSC exceeds the exemption limit of exemption limit for that assessment year, यानी 2,50,000 से ज्यादा है, and the net agricultural income of the SSC exceeds rupees 5,000 in the assessment year. यानी जिस इस साल की हम बात कर रहे हैं, तो इस साल एसएससी की दोनों इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम उसकी 5,000 से ज्यादा है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उसकी जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2,50,000 से ज्यादा है। एंड एसएससी इज एन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब अगर ये तीन चीजें हैं, यानी एसएससी कैसे होना चाहिए, कौन सा पर्सन होना चाहिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और इनकी इनकम दोनों तरीके की है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 उससे एक्सीड कर रही है, एंड द एग्रीकल्चरल इनकम जो है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा हो रही है। ऐसे केस में एग्रीकल्चरल इनकम को पहले टोटल इनकम जो कि निकाली जा चुकी है, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है, उसमें जोड़ा जाएगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम आप पहले निकाल चुके हैं, उसमें जो कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम है उसको ऐड करेंगे, उस पर टैक्स निकाल लेंगे। दूसरे स्टेप में हम रिबेट देंगे इस एग्रीकल्चरल इनकम के लिए, और इनकम पे रिबेट देने का तरीका ये है कि जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है उसमें एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक एसएससी की इनकम 5 लाख आई, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख है,
और उसकी एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख है। तो टोटल इनकम उसकी जो भी निकल के आई वो 5 लाख थी, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है, और एग्रीकल्चर इनकम उसकी 1 लाख है, जो कि 5,000 से ज्यादा है। तो हम पहले 5 लाख में 1 लाख ऐड करेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे, एक सर्टेन अमाउंट आएगा हमारे पास। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000, उसमें 1 लाख रुपए यानी एग्रीकल्चरल इनकम के 1 लाख रुपए जो है वो ऐड करेंगे, 3,50,000, उस पर टैक्स निकालेंगे, और पहले जो टैक्स आया है उसमें से ही दूसरा वाला टैक्स घटा देंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स लगा है वो कम हो जाएगा। लेकिन इन टोटलिटी हो सकता है एसएससी की टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाए। तो इस तरीके से थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन उस व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से ये बात सत्य है, स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर द पर्सन who is having only agricultural income and no other or non-agricultural income. For such person, all agricultural income is exempt. But for the person, for the SSEs who are having non-agricultural income as well and agricultural income also, for them, this statement is partially true because their agricultural income may be taken into account for calculating their tax liability. So this is all I wanted to share with you about agricultural income, and hopefully the session will be useful for you to understand the concept of this agricultural income for further computation purposes. So I think I have completed almost all the basic concepts of income tax, which I wanted to introduce to you, and a few things may have been left, but with time we will cover them also. The basic aspects of the income tax, or the basic terms of the income tax, the basic the concept of income tax that have been explained by me in previous 3 sessions. And in my next session, I will address another important aspect, that is residential status or residence and tax liability of the SSC. So till then, goodbye from me and take care of yourself. Thank you.